یہ ہفتہ وار بائبل کا درسیواز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 22 اکتوبر 2023 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: موت کے بعد امتحان۔ سنہری متن: مکاشفہ۔ جو غالب آئے میں اسے زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ جوابی مطالعہ: یسایہ۔ اے خداوند، تو میرا خدا ہے، میں تیری تمجید کروں گا، تیرے نام کی ستائش کروں گا، کیونکہ تو نے عجیب کام کیے ہیں، کیونکہ تو مسکین کے لیے قلعہ اور محتاج کے لیے پریشانی کے وقت ملجا اور آندھی سے پناہ گاہ اور گرمی سے بچانے کو سایہ ہوا، جس وقت ظالموں کی سانس دیوار کن طوفان کی مانند ہوگی۔ اور رب الافواج اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فربا چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا، بلکہ ایک ضیافت تلچھٹ پر سے نتھری ہوئی مے سے، ہاں فربا چیزوں سے جو پرمغز ہوں اور مے سے جو تلچھٹ پر سے خوب نتھری ہوئی ہو۔ اور وہ اس پہاڑ پر اس پردہ کو جو تمام لوگوں پر گر پڑا اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے دور کرے گا۔ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کر دے گا، اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام زمین پر سے مٹا ڈالے گا، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ اور اس وقت یوں کہا جائے گا کہ لو، یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ درسیواز بائبل میں سے مکاشفہ۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ یسایہ۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے، دیکھو میں سیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا، آزمودہ پتھر، محکم بنیاد کے لیے کونے کے سرے کا قیمتی پتھر، جو کوئی ایمان لاتا ہے قائم رہتا ہے۔ اور میں عدالت کو سوت اور صداقت کو ساحل بناؤں گا، اور اولے جھوٹ کی پناہگاہ کو صاف کر دیں گے، اور پانی چھپنے کے مکان میں پھیل جائے گا، اور تمہارا عہد جو موت سے ہوا ہو منسوخ ہو جائے گا، اور تمہارا پیمان جو پاتال سے ہوا قائم نہ رہے گا۔ متی۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ متی۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ متی۔ تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ متی۔ اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اسے کہا کہ اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے اس سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا، یہ کہ خون نہ کر، زنا نہ کر،
चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा, अपना मालो असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे कि फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा, और वो हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। लूका। फिर उसने शागिर्दों से भी कहा, एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था, और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया, और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। इब्राहिम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका, और इसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहें ना जा सकें, और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आएं। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ऐ बाप इब्राहिम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से इनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी न मानेंगे। इफ्सियों। बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ, तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फरौतनी और हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाएं। याकूब। है मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो, तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी न रहे। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। अब मैं मेरी बेकर रेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत।
जिंदगी अवधी है, हमें उसकी तलाश करनी चाहिए और उससे इजहार का आगाज करना चाहिए। जिंदगी और अच्छाई लाफानी है, तो आइए हम वजूदियत से मुतल्लिक हमारे ख्यालात को उम्र और खौफ की बजाय मोहब्बत, ताजगी और तवातर के साथ तश्कील दें। खुदा जिंदगी या जहानत है जो जानवरों और इसके साथ साथ इंसानों की भी शनाख्त और इनफरादियत को तश्कील देता और महफूज रखता है। खुदा इंसान का इलाही असूल और खुदा की शबीह पर बना इंसान गैर मुनफिक, हमाहंग और अब्दी हैं। हस्ती की साइंस कामलियत के असूल को सजाती है और लाफानियत को रोशनी में लाती है। खुदा और इंसान एक जैसे नहीं हैं, बल्कि इलाही साइंस की तरतीब में खुदा और इंसान एक साथ रहते हैं और अब्दी होते हैं। हस्ती पाकीज़गी, हमाहंगी, लाफानियत है। ये पहले से ही साबित हो चुका है कि इसका इल्म हत्ता के मामूली दर्जे में भी इंसानों के जिस्मानी और इखलाकी मेयार को ऊंचा करेगा, उम्र की दराजी को बढ़ाएगा, किरदार को पाक और बुलंद करेगा। बस तरक्की सारी गलती को तबाह करेगी और लाफानियत को रोशनी में लाएगी। तरक्की तजर्बे से पैदा होती है। ये फ़ानी इंसान की पुख्तगी है, जिसके वसीला लाफानी की खातिर फ़ानी बशर को छोड़ दिया जाता है, खा यहाँ या इसके बाद। तकालीफ या साइंस को ज़िंदगी और अक़ल के हवाले से तमाम तर फ़रेब नज़री को ख़त्म कर देना चाहिए और मादी फ़हम और ख़ुदी को असर नौ पैदा करना चाहिए। इंसानियत को उसके अमाल के साथ मनसूख कर देना चाहिए। कोई भी नफ्स परस्ती या गुनाह आलूद चीज़ फ़ानी नहीं है। ये मादे की मौत नहीं, बल्कि झूठे मादी फ़हम और गुनाह की मौत ही है, जिसे इंसान और ज़िंदगी हमआहंग, हकीकी और अब्दी ज़ाहिर करते हैं। मादे की नाम नहाद लज़्ज़तें और दर्द नेस्त हो जाते हैं और उन्हें सच्चाई के शोला, रूहानी फ़हम और हस्ती की हकीकत के मातहत चलना होगा। फ़ानी अक़ीदे को गलती और गुनाह से छुटकारा पाने के लिए उनमें पाई जाने वाली तमाम तर तस्कीन को ख़त्म करना होगा। जल्द या बदीर बशर ये सीख लेंगे और तबाही के दर्द वो कब तक बर्दाश्त करेंगे, इसका इन्हिसार गलती की शिद्दत पर है। होशियार, सादा और चौकस रहें। जो रास्ता इस फ़हम की जानब ले जाता है कि वाहिद खुदा ही ज़िंदगी है, वो रास्ता सीधा और तंग है। ये बदन के साथ एक जंग है, जिसमें गुनाह, बीमारी और मौत पर हमें फ़तह पानी चाहिए, खा यहाँ या इसके बाद, यकीनन इससे कबल कि हम रूह के मकसद या खुदा में ज़िंदगी हासिल करने तक पहुँच पाएं। अच्छाई की जानब बढ़ने वाला कदम मादियत से रुखसत होना है और ये खुदा रूह की जानब रग़बत है। मादी नज़रियात जुज़वी तौर पर लाफ़ानी और अब्दी अच्छाई की जानब इस तवज्जो को फ़ानी, आर्जी और मुखालफत की जानब तवज्जो की बदौलत मफलूज बनाते हैं। ये यकीन रखना गुनाह है कि कोई चीज़ क़ादिर मुतलक और अब्दी ज़िंदगी को ज़ेर कर सकती है, और ये समझते हुए कि मौत नहीं है और इसके साथ साथ रूह के दीगर फ़ज़ाइल को समझना ज़िंदगी में रोशनी ला सकता है। ताहम हमें मज़ीद इख्तियार के सादा इजहार के साथ आगाज़ करना चाहिए, और जितना जल्दी हम ये शुरू करें उतना ही अच्छा है। आखिरी इजहार उसके मुकम्मल होने में थोड़ा वक्त लेता है। चलते वक्त हमें आँख से हिदायत मिलती है, हम अपने पाँव के सामने देखते हैं, और अगर हम अक्लमंद हों तो हम रूहानी तरक्की की राह में एक कदम आगे देखते हैं। ये हकीकत के मसीह या सच्चाई ने मौत पर फतह पाई या अभी भी फतह पाता है, दहशत के बादशाह को महज एक फ़ानी अक़ीदे या गलती के अलावा कुछ भी साबित नहीं करती, जिसे सच्चाई ज़िंदगी की रूहानी शहादतों के साथ तबाह करती है, और ये ज़ाहिर करता है कि हवास को जो मौत दिखाई देती है, फ़ानी फ़रेब नज़री के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि हकीकी इंसान और हकीकी कायनात के लिए कोई मौत का अमल नहीं है। यसू की मौत के बाद उसकी ना बदलने वाली जिस्मानी हालत ने
तमाम तर मादी हालतों पर सरबुलंदी पाई और इस सरबुलंदी ने उसके आसमान पर उठाए जाने को वाज़ह किया और बगैर गलती के कब्र से आगे एक इम्तिहानी और तरक्की याफ्ता हालत को ज़ाहिर किया। हमें ये कहने का कोई हक नहीं है कि ज़िंदगी अब मादे पर मुनहसर है, मगर मौत के बाद ये इस पर इन्हिसार नहीं करेगी। यहाँ हम ज़िंदगी की साइंस से लाइल्मी में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते और कब्र के बाद इस लाइल्मी के लिए अजर की तवक्को नहीं कर सकते। लाइल्मी के अजर के तौर पर मौत हमें हम आहंग और लाफानी नहीं बनाएगी। अगर यहाँ हम क्रिश्चियन साइंस पर तवज्जो नहीं देते, जो कि रूहानी और अब्दी है, तो हम इसके बाद रूहानी ज़िंदगी के लिए भी तैयार नहीं होंगे। खुद की मनसूखी, जिसके वसीला हम गलती के साथ अपनी जंग में अपना सब कुछ सच्चाई या मसीह के हवाले कर देते हैं, क्रिश्चियन साइंस का दस्तूर है। ये दस्तूर वाज़ह करता है कि खुदा की बतौर इलाही असूल यानी ज़िंदगी बाप की पेश करदा, बतौर सच्चाई बेटे की पेश करदा और बतौर मोहब्बत माँ की पेश करदा, हर बशर को किसी न किसी वक्त यहाँ या आखिरत में खुदा के मुखालिफ ताकत पर फ़ानी अक़ीदे के साथ निमटना और उसे फतह करना चाहिए। हम जानते हैं कि जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा, सब एक पाल में बदल जाएगा, मगर हिकमत का ये आखिरी बुलावा तब तक नहीं आ सकता जब तक बशर मसीही किरदार की तरक्की में हर एक छोटे बुलावे को पहले से ही तस्लीम न करते हों। आलमगीर निजात तरक्की और इम्तहान पर मरकूज है और इनके बगैर गैर मुमकिनुल हसूल है। आसमान कोई जगह नहीं, अक्ल की इलाही हालत है, जिसमें अक्ल के तमाम तर ज़हूर हमआहंग और फ़ानी होते हैं, क्योंकि वहाँ गुनाह नहीं है और इंसान वहाँ खुद की रास्तबाजी के साथ नहीं, खुदा की सोच की मलकियत में पाया जाता है, जैसा कि कलाम ये कहता है। नफसी दौर के दौरान कतई क्रिश्चियन साइंस को उस तब्दीली से पहले हासिल नहीं किया जा सकता जिसे मौत का नाम दिया गया है, क्योंकि जिसे हम समझ नहीं पाते उसे जाहिर करने की ताकत हम में नहीं है। मगर इंसानी खुदी को अंजीली तबलीग मिलनी चाहिए। आज खुदा हमसे इस कलाम को कबूल करने का और जल्दी से अमली तौर पर मादी को तर्क करने और रूहानी पर अमल करने का मुतालबा करता है, जिससे बैरूनी और असली का तयन होता है। जिंदगी हकीकी है और मौत भरम है। यसू की राह में रूह के हक़ाइक़ का एक इजहार मादी फ़हम के तारीक इदराक में हमआहंगी और लाफानियत को हल करता है। इस मुख्तदर लम्हे में इंसान की तरजीह अपने मालिक के इन अल्फाज को साबित करना है, अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अबद तक कभी मौत को ना देखेगा। झूठे भरोसों और मादी सबूतों के ख्यालात को ख़त्म करने के लिए ताकि शख्सी रूहानी हक़ाइक़ सामने आए, ये एक बहुत बड़ा हसूल है जिसकी बदौलत हम गलत को तलफ करेंगे और सच्चाई को जगह फराहम करेंगे। यूँ हम सच्चाई की वो हैकल या बदन तामीर करते हैं जिसका मामार और बनाने वाला खुदा है। अब मैं मेरी बेकरीडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफ़िक करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से, हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मुज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए।
فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔